وعلیکم ایوریون، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ناول ہسارے یار کی فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول ڈے بائی ڈے بہت پسند آنے والا ہے، کیونکہ اس کی سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، سسپینس ہے، اس میں رومانس ہے اور ایکسٹریم لو سٹوری ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، لیکن پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ حد تھی، آخری لفظ کام کے تھے۔ امل رو رہی تھی، اس نے امل کو رلا دیا۔ کتنا منحوس تھا وہ، کتنی زندگیاں اذیت میں جھونکی تھی اس نے۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس نے ضبط سے کہا۔ آپ رلاتے ہیں مجھے۔ آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی وہ اس کی کائنات کی سب سے پاکیزہ اپسرا لگ رہی تھی اسے۔ وہ چند پل اسے دیکھے گیا۔ مت رویا کریں، بہت آہستہ سے کہا۔ اسی پل اس نے آنکھیں اٹھائی تھی۔ کیا کبھی تم نے وقت کو رکتے دیکھا ہے؟ وہ ایسا ہی لمحہ تھا جو ٹھہر گیا تھا ان دونوں کے درمیان۔ اس کی گلابی آنکھوں نے اس کی شہد رنگ بھیگی نظروں کو چھوا۔ کاش وہ وقت کے لگام کو کس کر تھام سکتا اور ان بھیگتی آنکھوں کے سہارے آنسو خود میں جذب کر لیتا۔ امل نے بے اختیار آنکھیں جھکائیں، وہ ان آنکھوں کی تکلیف کو مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ یہ زخمی آنکھیں اسے زخم دے رہی تھی، اس کے وجود زخم ہونے لگا تھا۔ میرے لیے مت رویا کرے امل بی بی، تکلیف ہوتی ہے مجھے، اتنا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ امل روتی رہی اور ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی، اس کے لیے رونا چاہتی تھی، اس کے حصے کا رونا چاہتی تھی۔ وہ کمرے کے واش روم میں بیسن پر جھکا منہ دھو رہا تھا۔ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، اگر وہ یہاں رہا تو امل کو زیادہ تکلیف دے گا، اور اس پر تو وہ اپنی ذات کا سایہ بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اور بھیگی آنکھیں، اس نے آنکھیں بند کر کے بے بسی سے چہرہ اوپر اٹھایا، مگر اب وہ اس کی سانسوں میں قطرہ قطرہ تحلیل ہونے لگی تھی، جسے وہ چاہ کر بھی خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز سفید حویلی میں معمول کے برخلاف چہل پہل تھی۔ ملازمین چستی سے کاموں میں مگن تھے۔ وہ بھی جان کے کسی کام سے آیا تھا، باریکی سے حویلی میں ہوتے کاموں کا جائزہ لیا اور بھی جان کے کمرے میں کی جانب بڑھ گیا۔ ارے ولی آؤ، وہ مسکرائی۔ ولی ادب سے چلتا صوفے پر آ بیٹھا۔ آج امل کے لیے حسن بھائی اپنے چھوٹے بیٹے نفیس کا رشتہ لا رہے ہیں۔ وہ جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ رگوں میں دوڑتے خون کی گردش یکدم تیز ہوئی تھی، اس کی سماعتیں جل اٹھی۔ بس امل کے فرض سے بھی آزاد ہو جاؤں تو سکون سے مر سکوں، وہ اس کے اندر ہوتی توڑ پھوڑ سے بے خبر کہہ رہی تھی۔ اس نے ضبط سے دان پر دان جمائے تو کن پٹی کی رگیں ابھری۔ ہاں بیٹا، تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تم ذرا شادی کے انتظامات دیکھ لینا۔ رشتہ تو بچپن سے طے تھا، اب صرف تاریخ ہی رکھی جائے گی اور شادی بھی جلد ہی رکھیں گے، بھابھی بتا رہی تھی۔ اسے قسمت کے فیصلے پر ہنسی آئی تھی، اسے خود پہ ہنسی آئی تھی۔ اس کی قسمت اتنی بھی ظالم ہو سکتی ہے، اسے امید نہیں تھی۔ اتنی ظالم کہ اب اسے اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے کرنا تھا، اور ستم یہ تھا کہ خوش دلی سے کرنا تھا۔ جی بے جان، میں سب سنبھال لوں گا، فکر نہ کریں، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور بے جان قدموں سے اٹھایا۔ زینوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ وہ اوپر چڑھتی ہوئی نظر آئی۔ امل نے اسے دیکھا، وہ ایک پل کے لیے رکا تھا اور پھر اتنی تیزی سے اتر گیا، زینوں کو قدموں تلے رون ڈالنا چاہتا تھا اور اسے مڑ کر دیکھ رہی تھی وہ۔ ولی نے گاڑی ریورس کی تو ٹائر چڑچڑا اٹھے۔ دروازے پر جمے ملازم نے اسے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ گاڑی تیزی سے نکال کر لے گیا، سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھ اور سپاٹ سا چہرہ، وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا، اور نارمل رہا ہی نہیں تھا۔ شاہ نواز جی صاحب جی، مجھے نفیس احمد کی زندگی کا ہر پہلو لا کر دو۔ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کب جاتا ہے کب آتا ہے، سب کچھ اس کی زندگی کا ہر وقت مجھے شام تک اپنی ٹیبل پر چاہیے، اور اس معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، جا سکتے ہو تم۔ بات ختم کر کے اس نے سامنے دھری فائل کھولی، مگر پھر سر اٹھا کے دیکھا شاہ نواز اب تک سر جھکائے کھڑا تھا۔ کہو صاحب جی، آپ کے حریف پہلے ہی گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کب آپ ذرا سا چوکیں اور آپ کو دھر لیں۔ ایسے میں حویلی والوں کی زندگی کو کنکھالنا خطرناک ہو سکتا ہے، آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا نواز، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اگر یہ ایسے ہے تو ایسے ہی۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ شاہ نواز اس کا وفادار اور خاصا گاہک ملازم تھا۔ مخالفین کی کمزوریاں جاننے کے لیے اس نے ہمیشہ اس پر بھروسہ کیا تھا، اور اس کے ملازم نے اسے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ صاحب جی، وہ ہاشم سرکار آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شام کا وقت طے کر دو۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ہاشم وہ آخری شخص تھا جس کی وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے بیشتر کاموں کو بیک وقت نپٹا کر فائل ایک طرف کی اور آخر میں سمان احمد کی نور آباد والی زمین کی فائل اٹھا لی۔ یہ زمین متنازع ہو گئی تھی، اور چونکہ یہ دوسرے کے علاقے میں
आ रही थी तो उसके बहुत से दावेदार उठ खड़े हुए थे। वो भी अपने गांव के बटेरे थे और बात मनवाने के फन में ताक, इसलिए उनके साथ बहुत सब्र से चल रहा था। मगर अब उसका सब्र जवाब देने लगा था, क्योंकि उस जमीन पर काबिज लोग हाशिम के जानने वाले थे और वो उन्हें मुस्तकिल वली के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था कि किसी तरह वो कहीं चूके और उसे जमान अहमद की नजरों में गिरा सके। अभी थोड़ी देर पहले जो शाहनवाज बोल गया था वो इसी का कुछ हिस्सा था। उसने लब भींचकर फोन उठाया और चंद बटन दबाकर कान से लगाया। मोहसिन, नूराबाद वाली जमीन के जितने भी दावेदार हैं उनके नाम, पते और उनकी सरगर्मियों की सारी रिपोर्ट्स मुझे जमा करके दो और देर बिल्कुल भी मत करना। अब इस काम को मजीद लटकाना नुकसानदेह होगा। उसने हुक्म देकर फोन कान से हटाया और अपनी जगह से उठने लगा था कि हाशिम उसके ऑफिस में दंदनाता हुआ दाखिल हुआ। वली उठते उठते बैठ गया। वो अच्छा खासा ऊंचा लंबा मर्द था, बिल्कुल बांस जैसा मजबूत कसरती जिस्म पर चिपकी हुई छोटी आस्तीनों वाली कमीज पहने वो अपने इंतहाई मकरूह होलिये की तरह नागवार गुजरता था। लोग उसे छटा हुआ बदमाश कहते थे क्योंकि उसका उठना बैठना ठीक ठाक किस्म के बदकमाश लोगों में से था और वली इस बात से बेखबर नहीं था। वो क्या है ना वली कि तुमसे काफी वक्त से मुलाकात नहीं हुई थी तो तुम आते ही नहीं, इसलिए मैं चला आया खुद तुमसे मिलने। ऊंची नाक रखते हो ना तुम, बस उसी का एहतराम करते मैं खुद तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हाजिरी कबूल फरमाओ सरकार। उसका मजाक उड़ाता लहजा वली को खपता था, मगर वो वक्त गुजर गया था कि वो अब उसे दब जाता। एक जंगल में रहते रहते उसे अंदाजा हो गया था कि आखिर जंगल में सरवाइव कैसे किया जाता है और अब वो कमजोर बेबस वली नहीं था। उसके इख्तियार में बहुत कुछ था। उसकी भी छटे हुए बदमाशों से दोस्तियां थी क्योंकि उसे यहाँ जिंदा रहने के लिए उनसे दोस्ती रखनी थी और उसने वही किया था। अगर हाशिम खतरनाक था तो वली भी खौफनाक रास्तों का मुसाफिर रहा था। क्या काम था? उसने कहा तो सिर्फ इतना ही। उसका चेहरा हर जज्बे से आरी स्वाट सा हो रहा था। काम अच्छे से जानते हो तुम। आगे वाला भी हाशिम था। उसके अंदर को धंसी स्याह आंखों में वली के लिए बला की नफरत थी, मगर वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उस जंगल ने उसको यही सिखाया था, कुछ बोलो तो पता चले। अब कि उसने मुस्कुरा कर कहा था, वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसे धरते धरते वो कहीं तो चूकेगा, गलती करेगा। अनजान मत बनो वली, जानते हो कि मैं तुमसे किस सिलसिले में यहाँ आया हूँ। इस जमीन से पीछे हो जाओ और दोबारा इसके मुतालिक बात करने की गलती भी मत करना। जानते हो ना, नूराबाद वाले लाशों को दफनाने के लिए माहिर समझे जाते। अपनी कब्र वक्त से पहले मत खुदवाओ। ओह, उसके लब ओह में सुकड़े। फिर अपनी नस्वारी आंखें, हाशिम की आंखों में गाढ़ी होंठ मुतबस्सम थे, मगर आंखों से गोया आग लिपटे निकल रही थी। उसने मुस्कुरा कर हाशिम की आंखों में देखा। अपनी कब्र मैंने खुद खोदी है हाशिम, अभी से नहीं, जब से पैदा हूँ तब से। और ये जो तुम मौत से डरा रहे हो ना, मुझे इसका कोई फायदा नहीं। भला मौत से गुजर कर आए किसी शख्स को मौत से डराया भी जा सकता है? कैसे? जानते हो मौत को कितने करीब से देखा है मैंने। एक पल को वो आगे को हुआ, उसकी आंखों में झांका, इतने करीब से कि तुम अगर देख लो तो दम रुक जाए तुम्हारा। और दूसरी बात, नूराबाद वाले अगर दफनाना अच्छे से जानते हैं तो कब्रों की खुदाई में पीछे हम भी नहीं रहे। कहो, पहले तुम्हारी कब्र खोदो या उनकी जिन्हें तुम अपनी ऊँगलियों पर नचा रहे हो? उसने उसकी बहुत सारी बातों का जवाब एक साथ दिया था, इन बातों का जो अभी उस पर उधार रह गई थी। बहुत बड़े हो गए वली, बहुत बड़े। लगता है वो जिल्लत भूलने लगे हो अब। शायद इतने अरसे में किसी ने तुम्हें याद नहीं दिलाया कि तुम गुनाह के जवाब में पैदा हुए थे, या शायद उसने कान छूकर सोचने की अदाकारी की। तुमसे इतने अरसे में किसी ने तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछा होगा। वो बिलाशुबा बहुत गहरी चोट थी। उसकी कनपटी की रगें बहुत बेख्तियारी उभरी थी। टेबल पर रखा उसका हाथ सख्त मुट्ठी में बंद हो चुका था। वली, तुम आज भी वही वली हो जो थे। आज भी तुम्हारी जात सवालिया निशान है। तुम्हारे लिए, इस गांव के लिए, बल्कि इस सारी दुनिया के लिए तुम्हारी जात सिवाय गन के ढेर के कुछ नहीं। मगर शायद तुम हवेली में रहते रहते भूलने लगे हो कि तुम हरामजादे हो। और ये हद थी। वो उठा, घूमकर टेबल की दूसरी जानिब आया और हाशिम का गिरबान से पकड़कर खड़ा किया। उसकी खून हाशिम की आंखों में गड़ी हुई थी और तनफ्फुस धमकी की मानी चल रहा था। एक और लफ्ज भी कहा तो हाशिम, मैं ये भूल जाऊंगा कि कभी किसी शरीफ घराने ने तरबियत की थी मेरी, और तुम्हें इतना मारूंगा, इतना कि तुम मौत मांगोगे, मगर तुम्हें मौत नहीं आएगी। और ये मत भूलो कि अगर मैं हराम ज़ादा हूँ तो तुम हराम की औलादों को जन्म देते पुलिस के छापों से बहुत दफा बचे हो। उसके जहरीले वार पर हाशिम ने जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर मारा तो वो बेख्तियार पीछे हटा। उसके होंठ फट गया था और उससे निकलता खून उसकी जबान में अपना जायका घोल रहा था, मगर वो परवाह किए बगैर जख्मी शेर की तरह आगे बढ़ा और उस पर झपट कर अपने टेबल पर लेटाया। फिर अंधाधुंध उस पर खूंसों की बारिश कर दी। उस पर जैसे कोई जुनून सवार हो गया था। हाशिम ने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया तो वो दरवाजे से जा लगा।
دروازے کا نام اس کے کوہنی میں بہت زور سے گھسا تھا. وہ آگے آیا اور اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا, مگر ولی نے اس کا ہاتھ روک کر اس کے پیٹ پر لات ماری تو وہ اڑتا ہوا دور جا گرا. دونوں طاقتور تھے اور لڑنا جانتے تھے, مگر آج ولی نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہاشم کی جان لے کر رہے گا. اسی وقت محسن اس کے آفس میں داخل ہوا تو آفس کی بکھری حالت دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. بکھرے کاغذ, الٹی سیدھی پڑی کرسیاں, دروازے کا ٹوٹا ناب اور گرے ٹیبل کے پیچھے لڑتے ولی اور ہاشم. دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لگتے تھے. اس نے بھاگ کر ان کو چھڑایا, پھر وہ انہیں الگ کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا. دو مضبوط لوگوں کو الگ کرنا ہرگز بھی مذاق نہیں تھا. ہاشم اسے گالیاں دیتا آفس سے نکلا تو اسی نے بھی ٹھوکر مار کر بکھرے کاغذات کو مزید بکھیر دیا. اس کی حالت کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی. سر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے. آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی. محسن نے اس کے لیے کرسی ٹھیک کی, مگر وہ زمین پر گرا. موبائل چپٹ کر تیز ہوتے تنفس کے ساتھ آفس سے باہر نکل گیا تھا. اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا اور جسم میں گویا جسے کسی نے ہزاروں گنا طاقت بھر دی ہو. غصے میں انسان کی طاقت دگنی ہو جایا کرتی ہے. اس نے سن رکھا تھا اور آج اسے اس کا اندازہ بھی ہو گیا تھا. شاہ سر, آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ ہاشم سرکار اور ولی سر ایک دوسرے کو کس طرح مار رہے تھے. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا, ورنہ دونوں ایک دوسرے کو مار دیتے. ولی سر پر تو لگتا تھا گویا جنون سوار ہو گیا. اسے بے اختیار جھجری آئی تھی. تم نے غلط وقت پر جا کر سارا کام خراب کر دیا محسن. زیادہ خود کو داد دینے کی ضرورت نہیں ہے وقت پر پہنچنے کے لیے. وہ لڑائی میں نے ہی پلان کی تھی. شاہ نواز نے انتہائی سکون سے کہہ کر اسے سکون کر دیا. محسن آنکھیں پھیلائے اس تک آیا. وہ ہاتھ میں پکڑا ریوالور پلٹ کر دیکھ رہا تھا. کیا مطلب آپ نے؟ لیکن کیوں؟ کہیں آپ ولی سر کو دھوکہ تو نہیں دے رہے شاہ سر؟ آخر میں وہ مشکوک ہوا تو شاہ نواز نے اس کے سر پر چپٹ لگا کر اسے پرے کیا. پھر آرام سے بتانے لگا. جب دل میں دشمنی کے غبار پکنے لگے نا محسن, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان چیخ چلا لے. جس پر غصہ ہے اسے مار کر اپنے اندر پکتا لاوا باہر نکال لے. اس سے مسئلہ حل ہو نہ ہو, انسان کی ذات کو ایک گونا سکون ضرور ملتا ہے. جس پر غصہ ہو اسے مار کے انسان کی اپنی ذات آسانی میں آ جاتی ہے. اس لیے کبھی کبھی ہاتھوں کی لڑائی بہت ضروری ہوتی ہے. میں نے بس ولی صاحب کی مدد کی اس جنگ میں. یہ آگ کی جنگ ہے محسن, اس میں سب خاک ہوگا, بچے گا کچھ بھی نہیں. میں نے بس انہیں تھوڑی سی آسانی دی ہے. وہ بلا شبہ بہت ماہر اور اپنے فن میں طاق تھا. اسے اندازہ تھا کہ کب زبان, کب دل اور کب ہاتھوں کی لڑائی لڑی جانی چاہیے, اور اس نے وہی کیا تھا جو اس کے تجربے نے اس کو سکھایا تھا. طویل جنگوں کے لیے اپنی طاقت کو محفوظ رکھنا اور دشمن کو بتاتے رہنا کہ جسے تم کمزور سمجھ رہے ہو وہ اصل میں اتنا کمزور ہے نہیں. آج کی جرأت کے بعد ہاشم کو اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ولی کتنا خوخار اور کتنا بڑا سروائیور تھا. اسے بس ہاشم کو یہی باور کروانا تھا. آپ کی تو منطق ہی میری سمجھ سے باہر ہے شاہ سر. اگر ولی سر کو پتہ چل گیا تو جانتے ہیں نا کیا ہوگا. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے وہ کیا جو ایک وفادار ملازم کو کرنا چاہیے, بس اور کچھ نہیں. تم اپنے دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور یہ بتاؤ جو کام تمہیں ولی سر نے کہا تھا وہ کیا؟ اس نے فائز کی گردانی کرتے ہاتھوں کو روک کر پوچھا تو محسن نے خاکی لفافہ اس کی جانب بڑھایا. وہ لوگ اچھے خاصے خطرناک لوگ ہیں شاہ سر. آپ ولی سر کو آگاہ ضرور کر دیجیے گا. میں اب چلوں گا. وہ آفس سے باہر کی جانب بڑھا تو شاہ نواز نے گہرا سانس لے کر خاکی لفافہ کھولا اور اندر رکھے پرچوں کو پڑھتے اس کی پیشانی پر بلوں میں اضافہ ہوتا گیا. یہ کیا حال بنا رکھا ہے ولی؟ اصغر اس کا واحد دوست تھا. اسے بھری دنیا میں اس کا واحد رشتہ جس نے اس کی خامیوں, اس کی بدنامیوں, اس کی ذلت کے ساتھ قبول کیا تھا. ابھی بھی وہ بکھری حالت میں اس کے پاس آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا. کچھ نہیں. اس نے آستینیں چڑھا کر صوفے میں دستکا تو اصغر سیدھا ہو بیٹھا اور اس کی زندگی سے بخوبی واقف تھا. کسی سے لڑ کر آئے ہو کیا؟ زبردست. بس ایک بات بتا دو, زندہ تو بچ گیا نا؟ وہ مرا ہی تو نہیں ہے وہ. اصغر نے اس کے جواب پر محتاط سا اسے دیکھا اور پھر سنبھل کر ہاتھ آگے بڑھا ہے. پھر اس کی ناک پر آئی خراش کو چھوا تو ولی بے ساختہ پیچھے ہوا. ناگواری سے اصغر کو دیکھا. اصغر نے اس کی ناگواری سے دیکھنے پر دانت نکالے تھے. معلوم ہے کہ تم جوان اور مضبوط ہو, مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تم جیسے چاہو جسے چاہو مارو گے. اس دنیا میں قانون اور پیسے کی راجدھانی ہے. مارنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ آگے والا تم سے ان دونوں چیزوں میں بڑا تو نہیں ہے, اور اگر بڑا ہے تو. ولی نے اسے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا تو اس کی پھسلتی زبان سنبھلی. تو بھی سالے کو اتنا ہی مارنا چاہیے. تھوک نکل کر بات مکمل کی تو ولی نے آنکھیں موند کر صوفے پر سر کی پشت سے ٹکا دیا. سر صوفے کی پشت سے ٹکایا. اس کے سر کے پچھلے حصے میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا. ڈور نوب لگنے کی وجہ سے اس کا پورا ہاتھ درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا اور پھٹے ہونٹ سے خون نکل کر وہیں جم گیا تھا. جس نے بھی مارا تھا بچ کر تو وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً. اصغر نے اٹھ کر سامنے رکھی لمبی سی درازوں والی ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا, پھر اس کے برابر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. کیا اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ خود صاف کرو اپنے زخم. مانی ہوں میں تمہاری, پکو مت. وہ بمشکل سیدھا ہو کر بیٹھا, پھر آستین اوپر کر کے کونے پر لگا زخم دیکھنے لگا. خون اس کے ہاتھ پر جم گیا تھا. اس نے ہاتھ چلایا تو
बन में दर्द की टीसें उठने लगी। मतलब कोई भी काम सीधा मत करना, तुम हर वक्त अंडरटेकर की तरह बस आंखें चढ़ाए रखना और लोगों को मारना पीटना। वेल डन। किसी का नहीं तो इस परी का ही ख्याल कर लो, तुम जैसे जिन के साथ उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओपन किचन में खड़ा वो चाय का पानी रखता मुसलसल उसे जली कटी सुना रहा था, मगर माथे पर आए जख्म को हाथ से छूता वली अमल के जिक्र पर बेख्तियार रुका था। उसकी गर्दन में गिल्टी उबर कर मासूम हुई। उसकी जिंदगी की वाहिद आसानी किसी और के बाग का फूल बनने जा रही थी। उसके पास जीने का जवाब पहले भी नहीं था, मगर अब उसे मौत ज्यादा सहल लगने लगी थी। पहली बार उसका दिल दुखने लगा तो उसे एहसास हुआ कि जिस्मानी जख्मों से कहीं ज्यादा तकलीफ तो वो जख्म दिया करते थे जो नजर नहीं आते थे। ओ हेलो, जख्म साफ करो अपने, अक्का गुंडा लग रहे हो। और एक बात बताओ, कब जाना है रिश्ता लेकर तुम्हारा अमल के लिए? जल्दी बता देना, मुझे तैयारी भी करनी है। उसने चाय उसके टेबल पर रखते कहा तो वली दांत पर दांत जमाता उठ खड़ा हुआ। कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अब मेरी कभी नहीं होगी। क्या मतलब? आपके असर ने नासमझी से देखा। वो कमीज का गिरबान जरा सा सरकाए गर्दन पर आए जख्म के जमे खून को साफ कर रहा था और उसकी आंखों में गुलाबी सी नमी तैरने लगी थी। ये लफ्ज कहना भी तकलीफ देता है कि वो उसकी कभी नहीं हो सकती। असगर ने उसकी खामोशी पे छुपे बहुत से मफाहिम समझ कर गहरा सांस लिया और उदासी से अपने दोस्त को देखे गया जो आंसू छुपाने की कोशिश में अपना सर पूरा झुकाए गर्दन के जख्म को देख रहा था। वली इधर आ। निसार ने तहक्कुम से उसे पास बुलाया। ये उन वक्तों की बात है जब वली सिर्फ 13 साल का था। उसने बड़े निसार, बख्तियार, नज़ीर, यहाँ तक कि घर के कुछ मुलाजिम भी उसकी तस्लीक का मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। वो इन सब से सहमा सहमा डरा डरा रहता था। कभी वो लोग उसके पीछे हवेली के कुत्तों को लगा देते और भाग भाग कर अपनी जान बचाता। कभी कुत्ते उसको बुरी तरह जख्मी कर देते थे और कभी मोहल्ले के बच्चों से उसको पिटवाया जाता। उसके स्कूल कॉलेज यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी लोगों को उसके माजी से आगाह करने वाले इस हवेली की औलाद ही थी जो उसे हर गुजरते लम्हे में नफरत किया करती थी। उसे उनकी नफरत की वजह आज तक समझ नहीं आई थी। लोग उसे मकरूह गर्दान कर उससे फरार क्यों चाहते थे। इस बात की समझ इतनी छोटी उम्र में आ भी कैसे सकती थी, मगर उसे इस बात का अंदाजा था कि जो भी इससे उसके बाप का नाम पूछता तो पूछने वाले के चेहरे पे अजीब किस्म की कमीनगी फैली होती। वो जवाब से ज्यादा उसके चेहरे के बदलते तासुरात से हंस उठाया करते थे और सबसे ज्यादा अजियत उसे यही एक चीज देती थी। निसार के बुलाने पर वो सहमा सा करीब आ खड़ा हुआ था। बख्तियार, हाशिम, नफीस और नजीर आपस में बातें कर रहे थे। उसे आता देखकर यकदम खामोश हुए। अरे वली, जरा अपने बाप का नाम तो बता। निसार ने सफागे से मुस्कुराकर उसके चेहरे पर सवाल का तमाचा मारा तो वो सब से सुर्ख हो गया। वो चारों भी मुतवज्जा होकर उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। पता ना, हाशिम ने हद कर दी थी कमीनगी की। मुझे नहीं पता, आप लोग मुझसे ऐसे सवालात मत करें, मैं बीजान को बता दूंगा। उसने जोर से मुट्ठी भींचकर उस सुर्ख चेहरे के साथ कहा। ज्यादा बकबक मत कर, सीधी तरह से बता दे। अब के बख्तियार ने कहा तो उसका खून खोल उठा। मुझसे ऐसी बातें मत करें आप लोग। उसकी नस्वारी आंखें अब के भीगने लगी थी। गुस्से से, गम से वो लोग उसकी इज्जत को तार तार कर रहे थे। उसे बेलिबास करने में कोई कसर नहीं उठा रखते थे। उसका वजूद बिखरने लगा था। उसके बचपन एजियत बनने लगा था। उसकी जिंदगी अजाब का गड़ा बनती जा रही थी। हरामजादा। नजीर अहमद की फनकार ने उसे पल में भस्म कर दिया था। हराम की औलाद हमारे घर में आकर हमारे सामने खड़ा होकर हमें ही जवाब देता है। बख्तियार ने उसके मासूम रुखसार पर रख के सनाटेदार चांटा मारा तो वो दूर जा गिरा। उसके होंठों से खून आने लगा था। उसने बेख्तियार अपने होंठ को छुआ, रोल दिया था। उसके माँ बाप ने उसे मिट्टी में रोल दिया था। बख्तियार अब उसे लातों से मार रहा था। उसके बाप की मोहब्बत में हिस्सेदार था। वो उसके हिस्से की मोहब्बत उनसे ले रहा था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हर किस नहीं। वो ज़ियानी अंदाज में लाते हैं उसके मुंह पर मार रहा था। वो वली नीचे गिरा बिलबिला रहा था। उसके लिबास खाक आलूद हो गया था। खींचा तानी में जगह जगह से फट गया था। किसी ने बीजान को इतला की तो वो दौड़ती हुई हवेली के पीछे वाले दलान में आई। बख्तियार मुस्तकिल उसके चेहरे पर लाते मारा था और चारों बैठे दिलचस्पी से ये मंजर देख रहे थे और वली वो तड़प रहा था माही बे आप की तरह। उनका कलेजा मुंह को आया। बख्तियार, छोड़ वली को, कम वक्त में कहती हूँ, दबाओ यहाँ से। वो अंधाधुंध दौड़ती हुई आई और बख्तियार को परे धकेला। वली बेदम साहब हुआ, गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसकी आंखें बंद बंद हो रही थी। कुछ खुदा का खौफ करो तुम लोग, बच्चे को अजियत देते कौन सी तस्कीन पहुंचती है तुम सबको। वो उसको साथ लगाए उनको कोस रही थी। बख्तियार ने पेशानी पर उभरा पसीना आस्तीने से रगड़ा। उस वाक़े के बाद वली को शदीद बुखार ने आ घेरा था। मुस्तकिल बीमार रहने लगा था। उसका अंदर खोखला हो गया था। उसका वजूद, उसकी सोच सब खाली हो गया था।
उसे लोगों से मिलने के ख्याल से खौफ आने लगा था। वो उसे अजीब सी नजरों से देखते तो उसका वजूद पर सांप लौटने लगते, उसकी रूह झुलस कर खाक हो जाया करती थी। वो खुद को आईने में देखता तो दिल करता कि आईना तोड़ डाले, अपना मुंह नोच ले। उसकी जात पल पल मर रही थी, वो पल पल जहर दिया जा रहा था। उस जहर की कड़वाहट ने उसके खून तक को जहरीला कर दिया था। वली अहमद, जमान ने उसे मोहब्बत से पुकारा तो उसका हलक तक कड़वा हो गया। मत कहें मुझे वली अहमद, नहीं हूं मैं आपके खानदान का हिस्सा, नाजायज हूं मैं, गंद की पोटली हूं। क्यों नहीं जिंदगी दी आपने मुझे सरदार बाबा। उसकी हिचकी उभरी आंखों में नमकीन पानी जमा होने लगा था। क्यों किया आपने मेरी जात पर एहसान, क्यों मुझे अपने पाकीज़ा जिंदगियों में जगह दी सरदार बाबा। मैं तो खाक था, खाक हूँ, आपने मुझे क्यों इस अज़ाब में डाल दिया। समान ने तकलीफ से उसकी बिखरती शख्सियत को देखा। कौन बदनसीब थे जिन्होंने इस माशरे के जालिम भेड़ियों के हवाले कर दिया था। बच्चे मेरी बात मत कहे मुझे बच्चा, नहीं हूं मैं बच्चा। उसने उनकी बात काटी थी। उसका वजूद जल्जलों की जद में था, आवाज तक लर्ज रही थी। क्यों उठाया आपने मुझे, मस्जिद के दरवाजे से उठा लिया था तो किसी जानवर के आगे डाल देते, मुझे इतनी अजियत तो ना होती सरदार बाबा। वो इख्तियार जमीन पर बैठा था, उसके कदमों से जान खत्म हो रही थी। जमान ने आगे बढ़कर उसे खुद में भींचा, उसकी रोशन पेशानी पर बोसा दिया। बस मेरा बच्चा, क्यों छोड़ दिया मुझे मेरे वालिदैन ने सरदार बाबा। वो हिचकियों से रो रहा था। मैं कितना बदनसीब हूँ। बदनसीब तो नहीं, बदनसीब वो है। बदनसीब तू नहीं, बदनसीब वो है। मुझे मार दे सरदार बाबा। उस पर यकदम हिज़यानी कैफियत तारी हो गई थी। मेरा गला दबाकर मार दे, ये एहसान मेरी जिंदगी ज़ात पर कर दे। मैं आपको अपना खून माफ़ करता हूँ। उसकी दाई पर जमान काम कर रह गए थे। ना मेरा बच्चा, जिंदगी खुदा की नेमत है, उसने मुश्किलें रखी हैं तो आसानी भी साथ रखी है। ये मायूसी अच्छी नहीं। मगर उसे शदीद कैफियत के बायस बुखार ने आ घेरा था। उसे नशा आवर दवाएं देकर सुलाया। जमान कमरे से निकल आए। बख्तियार, निसार, उनकी चिंगारती आवाज ने सबको हिला कर रख दिया था। जी आगा जान। वो दोनों दौड़ते हुए लाउंज में आए और लब भींच कर आगे बढ़े और दोनों को झनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। किसी इंसान पर जुल्म करते शर्म नहीं आई तुम दोनों को। क्या हो तुम दोनों, खुद क्या हो। कभी अपने इस मकरूह वजूद को आईने में नजर भर कर देखा है? देखा है वो धाड़े थे। खुदा की मखलूक पर जुल्म करके कौन सी बरतरी साबित करना चाहते हो तुम? इसलिए अफसल हो क्योंकि अपनी माँ बाप की आगोश में रहे हो बचपन से, बस इसलिए इतनी अकड़ है। अरे डरो उस कहर से, उसके अजाब से। वो रब तुम्हें ऐसी जगह पैदा कर देता तो क्या कर लेते तुम लोग। ये घमंड, ये गरूर, ये खाक है सब। कोई अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। उसको कोसते जरा सोचा होता तो नौबत यहाँ तक हरगिज नहीं आती। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। बीजान और मुलाजिम भी इकट्ठा हो गए थे। हाँ तो आपने क्यों उसको इस घर में पाला हुआ है? हसन ताया और हुसैन ताया ने तो ऐसे किसी लेपालक को घर में नहीं घुसाया। फिर आपको क्या पड़ी है जमाने भर का गंद खुद के सर लेने की? बख्तियार ने इंतहाई बदतमीजी से कहा तो जमान चंद पल जब से उसे देखते रहे। जानता हूँ मैं कि तुम्हारे मुंह में किसकी जबान बोल रही है। अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते तो कभी इस किस्म की गलाजत तुम्हारे मुंह के रास्ते पाही ना निकलती। लेकिन बख्तियार सही कह रहा है आगा जान, उसका हमारे घर में, हमारे खानदान में कोई हिस्सा नहीं। वो इस घर में क्यों रह रहा है फिर? निसार भी भाई के देखा देखी शेर होने लगा था। जमान का चेहरा सुर्ख होने लगा। जब खुदा किसी चीज की इस्तात देता है ना तो बरोज़े हशर वो इस इस्तात की बाबत इस्तफसार भी करने का हक भी रखता है। मैं खुदा के सामने और अपने पुरखों के सामने इस बड़े दिन में मुजरिमों की तरह गर्दन झुकाकर नहीं चाहना चाहता। और रहे तुम्हारे ताया जानो तो वो अपने अमाल, अपने फैसलों के जिम्मेदार खुद हैं और उस रोज अल्लाह को खुद जवाब देंगे। मैं उनकी जगह जवाबदेह नहीं होऊंगा। कोई किसी की जगह जवाबदेही नहीं कर सकता। ये बंदे और रब का मामला होता है। मैंने उसको इस घर में लाकर, उसकी परवरिश करके, उसकी जिम्मेदारियां उठाकर उसकी जात पर नहीं अपनी जात पर एहसान किया है। नेकी इंसान अपने लिए करता है, कोई दूसरा आकर तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करेगा। आपकी नेकी आपको मुबारक आगा जान, मगर मुझ में इतना हौसला नहीं कि उसे बर्दाश्त करूं। वो मुझे बल्कि इस गांव के हर शख्स को नागवार गुजरता है। पता नहीं आपको कौन सी नेकी कमानी है। बख्तियार ने अपने बाप से इंतहाई बेजार होकर कहा तो जमान जहर खंदा सा मुस्कुराए। अगर किसी को इस घर में होते किसी भी काम से मसला है तो वो रहा दरवाजा। उन्होंने दाखिली दरवाजे की जानिब इशारा किया। वो यहाँ से जा सकता है। मेरे घर में सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। आइंदा मुझे हसन भाई या फिर बड़े भाई की मिसालों से कायल करने की गुस्ताखी की तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई भी औलाद है। उनके ठंडे लहजे में जो आग बोल रही थी वो बख्तियार को बखूबी महसूस हुई और उसके दिल में वली के लिए लावा पकने लगा। उसे इससे इतनी नफरत हुई जितनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई थी। उसका बाप उसे घर से जाने का कह रहा था और वजह सिर्फ और सिर्फ वली था। खून उसकी कनपटियों में ठोकरे मारने लगा तो वो दंतनाता हुआ लाउंज से उठाया। जमान ने अपनी औलाद को अफसोस से जाते देखा। नाश्ते की तवील टेबल पर सारे घर के अफराद मराजमान नाश्ता तनावल कर रहे थे। आज एतवार था मगर बख्तियार और निसार दोनों रात को देर तक घर से बाहर रहने के बायस अब तक सो रहे थे, इसलिए माहौल का तनाव ना होने के बराबर था। जमान अहमद ने नाश्ते से हाथ रोककर
नाश्ता करते वली के जख्मों को बगौर देखा। बीजान भी उसके चेहरे की जानिब ही देख रही थी, मगर वली बहुत आरामदेह सा लग रहा था। उसके चेहरे पर बरसों बाद ज़मान ने इत्मीनान की लहर देखी थी, शायद इसलिए कि जिसको वो मार कर आया था उसने बहुत जुल्म किए थे उसकी ज़ात पर, और ये सच था। इस हाथापाई के बाद वली के जलते वजूद को करार आ गया था। नूराबाद वाली ज़री ज़मीन का क्या बना वली? ज़मान ने कस्तन उसके जख्मों को नज़रअंदाज करके कहा, मगर बीजान ने उनके नज़रअंदाज करने पर पहलू बदला था। मैं कर रहा हूँ बात नूराबाद वालों से, आज जाऊँगा उनके बड़ों से इस मामले पर गुफ्तगू करने, देखे फिर क्या बनता है। उसने भी सर उठाकर जवाब दिया, ये जानते हुए भी कि सब नामहसूस तरीके से उसे ही देख रहे थे। इन सब की नजरों को यकसर नजरअंदाज किया, मगर अमल की फिक्रमंद सी निगाहें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। उसने सर झटका, जो भी करो सोच समझ कर करना। नूराबाद वाले बहुत खतरनाक लोग हैं और अभी उनके बड़े इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं। इस सारे अरसे में किसी भी किस्म का स्कैंडल कोई अफोर्ड करने की भरपूर कोशिश करेंगे वो। इस अरसे में किसी भी किस्म के स्कैंडल को अवॉइड करने की भरपूर कोशिश करेंगे वो, तुम ध्यान रखना। जानता हूँ आगा जान, इस मसले को बात से हल कर लिया जाए तो ही बेहतर है। खामखा बात बड़ी तो किस्सा अदालत तक जाएगा, जो उनकी सियासी साख के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। मगर वली, मुझे नहीं लगता कि मसला अदालत के बगैर हल होगा। वो लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। ज़मान के चेहरे पर सोच की लकीरें उभरी तो उसने उन्हें सुकून से देखा। वो जो भी करेंगे दोनों जानिब से नुकसान उन्हीं का होगा। सरदार बाबा, उसने नैपकिन से लब थपथपाए और प्लेट परे की। अभी उनके हल्के में इंतखाबात का वक्त है और फिर दूसरी तरफ इस इलाके के थाने का एएसपी मेरा दोस्त है। कोई भी हरकत उनको ही नुकसान पहुंचाएगी। जब एक जानिब से हाथ बढ़ाया जा रहा है तो दूसरी जानिब से हाथ आ जाते हैं। तुम्हें यकीन है कि वो एएसपी दोस्त है तुम्हारा? उनके सवाल पर उसकी संजीदगी कुछ और गहरी होती चलेगी, जैसे वो कुछ बहुत सोचता रहा हो, जैसे उसे अंदाजा हो इस सारे मामले का। इस दौर में कौन दोस्त होता है आगाजान? उसने नस्वारी आंखों से आगाजान को देखा तो वो नासमझी से उसे देखने लगे, और देख तो नासमझी से उसे बीजान भी रही थी। फिक्रमंदी से मुस्तरबाना अंदाज में नाश्ता छोड़े। जिस तरह का दोस्त मेरा है वो, और जिस वजह से आप बखूबी जानते हैं सरदार बाबा, यहाँ हर एक को काबू करने के लिए ख़ास टेक्निक है। और वैसे भी इन पुलिस वालों की तो अपनी ज़िंदगियाँ इतनी आलूदा होती हैं कि क्या मामला को मज़ीद उलझाएंगे ये। आप बेफिक्र रहें, काम हो जाएगा। उसने बात मुकम्मल करके उनके जवाब का इंतज़ार किया। ज़मान के चेहरे पर फिक्र की लकीरों के साथ साथ कमज़ोरी भी झलक रही थी। उस अटैक के बाद वो आज सबके साथ नाश्ता कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने समझ कर सर हिलाया, लेकिन अपने साथ शाहनवाज को लेते जाना और अगर ज़रूरत महसूस करो तो गार्ड्स को भी साथ ले लेना। बात के होने से एहतियात बहरहाल बेहतर है। उन्होंने बहुत ताकीद से उसे कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा सरदार बाबा। अच्छा हाँ, उन्हें बेख्तियार कुछ याद आया तो वली ने उन्हें देखा। अलामादीन साहब की बेटी ने के केस का क्या हुआ? पिछली पेशी पर शाहनवाज कह रहा था कि मामला कुछ खास आगे नहीं बढ़े, लेकिन लगता है जैसे वो इस मामले को लटकाना चाहते हैं। उनके कहने पर उसने भी सर हिलाया था। फिर कहने लगा, मैं गया था पिछली पेशी पर, मामला वाकई अटके हुए सरदार बाबा। इलामा साहब की बेटी को पेशी के लिए बार बार बुलाया जा रहा है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो इस केस के जरिए उनकी जहनी अजियत उनको पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो तंग आकर केस ही वापस ले ले। मैं देखता हूँ इस मसले को भी आप फिक्र मत करें। बहुत जिम्मेदारी से कहकर उसने ज़मान की परेशानी अपने सर ले ली थी। वो इनका जितना भी एहतराम करता, उनकी जितनी भी खिदमत करता, वो कम थी। उन्होंने इसे इज्जत दी थी, उसके मुकाबले में ये काम कुछ भी नहीं थे। सही, जैसे वो कोई प्रोग्रेस हो मुझे ज़रूर आगाह करना। इलामा साहब बहुत परेशान थे पहले इस मसले की वजह से। फिक्रमंदी से कहकर उन्होंने भी हाथ नैपकिन से साफ किए और फिर ज़मानी बेगम को चाय का इशारा किया। उनके इशारे पर बीजान ने झट से गरम गरम चाय कप में उंडेली। पूरा माया कप में बहने लगा। अब मैं इजाजत चाहूंगा सरदार बाबा। उन्हें कुछ पर देखता रहा, फिर कोई काम न होने की वजह से उठने लगा तो बीजान यकदम बोली, ये जख्म वली, ये कैसे आए तुम्हें? वो उठते उठते बैठ गया। ज़मान चाय पीते पीते बीजान की बेसब्री देखकर मुस्कुराए। अलबत्ता गर्दन उठाकर उन्होंने वली को देखा था और देख तो उसे अमल भी रही थी। सबका मरकज बनने वली को कोफ्त होने लगी। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बीजान, कहा तो सिर्फ इतना ही, मगर बीजान की तसल्ली नहीं होती। कोई दवा ली है? वो इससे पूछ रही थी। दवा, सबसे बड़ी दवा तो ये लड़ाई थी, जिसके बाद वो पुरसकून हो गया था। उसके अंदर पकता गम और गुस्सा बाहर निकला तो उसने खुद को बहुत हल्का महसूस किया था। जी बीजान, ली है दवा। सबको एक नज़र देखा। अब मैं इजाज़त चाहूंगा। और कुर्सी घसीटता उठ खड़ा हुआ पलटने लगा जब सामने से नाजिया आती दिखाई दी। उसे देखकर हल्का, बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराई थी, मगर वली ने एक स्पॉट नज़र उस पर डाली और बाहर की जानिब बढ़ गया। उसके इस तरह के रद्द अमल से भी नाजिया को फर्क नहीं पड़ा था। वो उसे पसंद करती थी बचपन से, कोई अंधा भी देखकर बता सकता था। अरे नाजिया, इतनी सुबह सुबह? बीजान उससे कह रही थी, मगर वो जरा तिरछी हुई से जाता देख रही थी। नस्वारी रंग के कमीज शलवार में इसका दराज कर नुमाया था। चौड़ी पुश्त और मजबूत सराफे को पीछे से देखते उसके दिल में खलबली मची थी। अगर जो उसका हो जाता वो तो काश। मगर इसी वक्त वो दरवाजे के पार गायब हुआ तो उसने भी चेहरा मोड़कर बीजान को देखा, जो अमल के साथ नाश्ता के बर्तन समेट रही थी।
बस चची, अमल के साथ पेपर्स की तैयारी करने आई हूँ। बीएससी के इम्तिहान होने वाले हैं ना? अमल उसकी बात पर मुस्कुराई थी। जी, इन मोहतरमा को मैंने ही कायल किया है तैयारी करने पर, वरना इनका कोई इरादा नहीं था। वो दोनों हम उम्र थी, मगर नाजिया अमल से उम्र में बड़ी लगती थी, शायद अपने चेहरे के पक्केपन की वजह से, जबकि अमल उसके बरक्स बहुत सादा और मासूम थी। वो किचन से बाहर निकली तो नाजिया ने उसे बाजू से पकड़कर कमरे की जानिब घसीटा। तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मैंने। वो उसके कमरे में धक्का देकर खुद तो दरवाज़ा बंद करती उस तक आई। अमल ने उसे मशकूक नज़रों से देख रही थी। यकीनन कोई काम हो गया मैडम, काम होगा मैडम को। उसकी बात पर वो खिलखिलाते हुए बेड पर लेटी। हाँ जी, काम तो है, मगर ऐसा काम जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे दिल की बात सुननी है और बस। अमल में इस राज को वो नहीं समझ सकती। वो एकदम सीधी होकर बैठी तो अमल मुस्कुराकर उसकी जानिब मुड़ी। और क्या है वो राज? उसकी मलाई सी जिल्द पर चुटिया से निकली लिट झूलने लगी तो उसने मुस्कुराकर उसे कान के पीछे अड़सा। उफ, कैसे बताओ? नाजिया ने मुस्तरब होकर हाथ आपस में रगड़े तो उसने आंखें छोटी की। कत्ल तो नहीं कर दिया किसी को? उसके पूछने पर वो हंसी थी, मगर उसके गालों में घुलते गुलाल अमल को कोई और दास्तान सुनाने लगे थे। अमल मैं वली से मोहब्बत करती हूँ, बहुत उम्मीद से उसने उसकी जानिब देखकर कहा तो अमल को चंद पल लगने समझने में, और जब उसे समझ आया तो उसका दिल अंदर डूब कर उभरा। मतलब? उसने बमुश्किल खुश्क पड़ते गले को तर किया था। दिल अब तक कानों में थक थक कर रहा था। हाँ, अमल मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। अभी से नहीं, बचपन से करती हूँ। तब से करती हूँ जब मुझे पता भी नहीं था कि मोहब्बत का मतलब क्या होता है। वो कमरे में गोल गोल चक्कर काटती उसे बता रही थी, और अमल को लग रहा था कि वो कभी हिल नहीं पाएगी, क्योंकि ये आखिरी बात थी जो उसने नहीं सोची थी। पहली बार उसे अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि वली से कोई और भी मोहब्बत कर सकता है, और अब जब उसे पता चला था तो उसे अपने वजूद में खामोशी फैलती महसूस हुई थी, भयानक खामोशी। शाहनवाज, गाड़ी निकालो। वो नस्वारी आंखों को स्याह चश्मे से ढकता ऑफिस में दाखिल हुआ तो शाहनवाज बेख्तियार उठा। वली सर, थोड़ी देर पहले कांता बीबी आई थी। नाम सुनकर वो बेसाख्ता मुड़ा था। क्यों? उनका बच्चा हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसे शहर लेकर जाना होगा। फिक्रमंदी से पेशानी छूता वो मोबाइल निकालकर अब चंद नंबर स्टाइल कर रहा था। कांता इस गाँव की जवान बेवा थी जिसका शौहर ज़मीनी मसाइल में मारा गया था। ख़ानदानी सपोर्ट न होने की वजह से वली ने उसकी जिम्मेदारी अपने सर ली थी। वो इस माशरे में किसी और वली अहमद को बड़े होते नहीं देखना चाहता था। बाप का साया इस सफाक माशरे में जिंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी था उसका अंदाज़ों से बखूबी था। फैसल, कांता बीबी के घर गाड़ी लेकर जाओ, उन्हें शहर के हॉस्पिटल पहुंचाओ। मैं फारिग होकर वहां आता हूं, और कोई उनका बेटा बीमार है। उसने फोन रखकर शाहनवाज की जानिब देखा। वो दरवाजे में इस्तादा उसके लिए इंतजार कर रहा था। नूराबाद वालों को आगाह कर दिया था। उसने कंधे पर डली स्याह शाल दुरुस्त करते हुए उससे पूछा। वो साथ चलता बताने लगा। जी सर, बता दिया था, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। कोशिश कीजिएगा सर के बात के ही जरिए सिमट जाए बात। हूँ, जानता हूँ। खैर, ये इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी कर रखी है तुमने? उसने गाड़ी में बैठते बाहर गार्ड्स खड़े देखकर पूछा तो शाहनवाज ने चाबी घुमाता उसे बताने लगा। ये सरदार पापा का हुक्म था वली सर। उसने एक पल के लिए बहक हुए मिरर में उसे देखा तो उसने गहरा सांस लेकर उस बात में सर हिलाया, उसे चलने का इशारा किया। वो नूराबाद में दाखिल हुआ तो पूरे गांव में हलचल सी मच गई थी। लोग अपने अपने कच्चे घरों से बाहर निकलकर इस लाओ लश्कर को देख रहे थे जो वली की गाड़ी के पीछे सैकड़ों गाड़ियों में चला आ रहा था। उसने स्पाट नजरों से गांव के मकीनों को देखा और गाड़ी रुकने पर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बड़ी सी ऊंची हवेली के बाहर उसका इस्तकबाल बहुत से मुलाजिम कर रहे थे। उसने सर इस्पात में हिलाए और उनकी मैयत में चलता हवेली के अंदर दाखिल हुआ। रुतबे अमारत में वो जमान अहमद के खानदान से कहीं पीछे थे, मगर शायद अपनी धाक उन्होंने जाने लेकर कायम कर रखी थी। उसके पीछे उसके सारे गार्ड्स थे। बैठक के बाहर सब गार्ड्स को अंदर जाने से रोका गया था तो उसने सर के इशारे से उन्हें इजाजत दी। अलबत्ता शाहनवाज उसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ था। गांव के वडेरा अरबाज शाह घनी मूंछों को ताव देता उसे सर्द निगाहों से देख रहा था। उसके आसपास गांव के बहुत से नामवर लोग भी बैठे थे जो हर पंचायत में शायद अहम जाने जाते थे। उनका यूं साथ बैठना साफ जाहिर करता था कि उन्हें इसका मुतालबा हरगिज़ भी अच्छा नहीं लगा था। वो साथ मुस्कुराता उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठा। शाहनवाज उसके साथ खड़ा हो गया। हमने तो सोचा था कि कोई बड़ा सा आदमी आएगा, मगर जमान ने तो बात करने के लिए बच्चा भेज दिया। उसकी कम उम्री पर चोट करता वो सीधा हुआ तो वली की मुस्कुराहट गहरी हो गई। शाह साहब, आप पर ज्यादा बोझ न पड़े इसी का तो ख्याल करते उन्होंने आपके पास बच्चा भेजा है। उसके अंदाज पर सुलगता हुआ और बात जरा आगे को हुआ और उसकी नस्वारी आंखों को काटदार नजरों से देखा। वली को अंदाजा हो रहा था कि इनको जालिम क्यों कहा जाता था।
तुम शायद यहाँ का कानून नहीं जानते हो लड़के, जो चीज़ हमारे इलाके में होती है वो हमारी होती है। कोई कागज़, कोई दावा उसे हमारे तसल्लुत से नहीं निकाल सकता, और जो निकालने की कोशिश करता है उसका इलाज हम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। उसने मुस्कुराकर कोहनियों को घुटने पर टिकाए और हथेलियां बाहम मिलाई, फिर अरबाज शाह की आंखों में बेखौफी से देखा। जो इलाज आप करते हैं उस इलाज से बखूबी वाकिफ हैं हम, मगर जो इलाज हम करते हैं क्या इसको जानने की जहमत की आपने? माहौल में अजीब सा तनाव दर आया था। हर एक टिकटिकी बांधे दो नफूस को देख रहा था, जो माहौल से बेनियाज होकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हर वार के लिए तैयार थे। तो फिर इसमें जीतेगा वही जो वार पहले करेगा। अरबाज शाह का दिमाग उसके जवाब पर भुनाया था। और तुम तो फिर जरा जितने हो। कितनी जिंदगी होगी तुम्हारी? ज्यादा से ज्यादा 24 साल। मुझे देखो, 60 साल का हूँ मैं। 8 कत्ल किए हैं मैंने, और आज तक। उसकी आवाज बुलंद हुई। वली वैसे ही बैठा था, बेतासुर, स्पॉट चेहरा लिए, अलबत्ता उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कुराहट थी, आग जैसी बर्फ। आज तो कोई माई का लाल मुझे सलाखों के पीछे नहीं कर सका, और ये भी जान लो कि अगर हम मार देते हैं तो लाश तक घरों को नहीं लौटाते, चील कौवों के आगे डाल देते हैं। वो वाकई बहुत जालिम शख्स था। अब के वली की मुस्कुराहट सिमटी, उसके चेहरे पर काट उभरी। आप अपनी बदअमालियां मुझे ना बताएं जनाब, खुदा को क्या जवाब देंगे इसकी तैयारी करें। वैसे भी अपनी चीज लेने आया हूँ, अपनी चीज लेकर जाऊंगा, सीधी तरह से नहीं तो फिर टेढ़ी तरह से, लेकिन ये आप तय करेंगे कि आप मामला कैसे चाहते हैं। मैं आपको 2 रास्ते बता दूंगा, कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे ये फैसला आपका है। उसने उबलते गुस्से को काबू करके बड़े ठंडे अंदाज में आगे वाले पर सीसा उंडेला था। अरबाज शाह की आंखें हतक पर सुर्ख हुई। हम बातों को दोहराने के आदी नहीं है लड़के। उसकी गरज पर कमरे में खामोशी के बायस सन्नाटा महसूस हुआ था, मगर वली वैसे ही बैठा रहा, और इस सब के लिए ज़हनी तौर पर वो तैयार था। मेरी लाश के लिए कोई मेरा इंतजार नहीं करेगा शाह साहब, इतना मैं आपको बता दूं। और ये भी कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता और उसका कायनात से सबसे मुश्किल शिकार होता है। आप जो चाहें करें, मैं मामला बात से ही तय करना चाहता हूँ। कमजोरियां आपकी भी हैं और मेरी भी, दोस्तियां आप भी रखते हैं और मैं भी, लड़ना आप भी जानते हैं और मैं भी। तो वो सीधा हुआ। बेहतर यही है कि मसले को बढ़ाने के बजाय इंसाफ की बात की जाए, जल्द अज जल्द इस मामले को खत्म किया जाए, वरना सियासत में आपके चढ़ते मकाम के पैर से कुचलते मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। आखिर में उसका अंदाज वार्निंग देने वाला था, मगर आगे भी वो लोग थे जिन्हें शायद डर से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। उसकी बातों को इस्तजा हंसकर हवा कर दिया। देखो तो अब ये जरा जितना लड़का हमें बताने चला है कि आग की जंग में जिंदा कैसे रहा जाता है। लड़के हंसते हंसते वो यकदम घुराया तो वली ने उसे दिलचस्पी से देखा। तुम जैसे बहुत आए और बहुत गए, तुम जैसों को तो हाथ में पड़ी धूल की तरह उड़ा देते हैं हम। इसलिए जो भी इरादे लेकर आए हो अभी के अभी पलट जाओ, वरना अपनी टांगों पर वापस जाना तुम्हें नसीब नहीं होगा। शाहनवाज का हाथ रिवॉल्वर पर रेंगा तो वली ने उसे तंबी नजरों से इशारा किया। उसने इशारा समझकर गर्दन झुका दी। हमारा इरादा आप अच्छे से जानते हैं शाह जी, और अगर आप इस जिल्लत को प्रचार चाहते हैं तो हम इसमें आपकी मदद भरपूर करेंगे, मगर फिर याद रखिएगा कि हालात के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैंने आपको बहुत आसानी की राह दिखाई है, आपसे बहुत स्वभाव से बात की है, कोई गाली गलाज किसी चीज को आड़े नहीं आने दिया। मगर वो ठहरा और अरबाज शाह के सारे कारिंदों पर एक चिट्ठी निगाह डाली। अगर आप खुद इस बात को हल नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। वो शॉल कंधे पर डालता उठा तो उसी के साथ ही शाहनवाज बाहर निकला। गार्ड्स के हमरा वो दाखिली दरवाजे तक आया, फिर मुड़कर इस हवेली को आखिरी नजर देखा और तल्ख मुस्कुराहट के साथ गाड़ी में बैठ गया।